Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from ML Carmen Group of Schools. So students, today we are taking a poem, the first poem in your syllabus, that is a photograph. A photograph is a poem that has been written by uh, Shirley Toulson. Let us try to have some information about the poet Shirley Toulson. Shirley Toulson was born on 20th May 1924 in Hindley on Thames, England, as the daughter of Douglas Horsfall uh, Dixon and Marjorie Brown. She had a huge passion for writing and was greatly influenced by her father, who was a writer too. She secured a BA in literature from Brockenhurst College in London in the year 1953. Shortly, she took writing as a career but also served as the editor for many magazines in the meantime. She married Alan Brownjohn on 6th February 1960. They had three children, Janet Sayers, Ian Toulson, and Stephen Brownjohn. But after 9 years, they divorced in March 1969. Toulson belongs to the modern age of British poetry, the age of experimentation in form and technique. As we all know that the modern age is the age of experimentation in form and technique. So, she belongs to the modern age. Her poetry is known for the brief, witty touches and a unique combination of humor and pathos. She lives in Somerset at present. She came under the influence of Celtic Christianity during the period she was working on her books dealing with the folklore of Britain and Ireland. She seems to have imbibed in her life very strongly the impact of religious persons and saints. Among her notable writings are the Celtic Alternative that was published in 1987 and the Celtic Year that was published in 1983. The poem that is in our syllabus is a photograph. You know, in this poem, the poet deals with the commonplace theme of the impermanence of life. Decay and death are integral part of human life. With time, man loses his youth and strength. Then, one day, he is no more. What is left behind are sweet and sour memories, which are often evoked by something that has been kept as a souvenir. So, the poem A Photograph is written, as I told you, by Shirley Toulson. The poem is a tribute to the poet's mother. ये जो पोएम है ये पोएट की मदर के लिए उनका ट्रिब्यूट है. The poem shows how time takes its toll on life. ये पोएम इस बात को दिखाती है कि जो समय है, टाइम, जिसको कि कई नामों से पुकारा गया, जैसे विलियम शेक्सपियर ने टाइम को स्लटिस बोला, क्योंकि टाइम कभी किसी एक का फेवर हर समय नहीं करता. अगर आज किसी का फेवर कर रहा है तो कल किसी और को फेवर करेगा. जो टाइम है वो हमारे जीवन पे किस तरीके से प्रभाव डालता है. वी ट्राई टू कैप्चर मोमेंट्स फ्रॉम आवर लाइफ विच रिमेन एज पिक्चर्स इन आवर माइंड. हम अपने जीवन के वेरियस मोमेंट्स को वेरियस तरीके से सुवनिर के रूप में कैप्चर करने का प्रयास करते हैं, पिक्चर्स के रूप में, जो कि हमारे दिमाग में बनी रहती हैं. हाँ, कुछ मोमेंट्स की मेमोरीज फेंट होती हैं तो कुछ मोमेंट की मेमोरीज क्लियर होती हैं. What is finally left is the silence and death
for the next generation to reflect upon. और जो फाइनली हम सब के पास होता है वो होता है साइलेंस और डेथ, जो कि हम इनहेरिट में देते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन, ताकि वो हम लोगों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सके. The title, A Photograph, is symbolic of such pleasurable moments in our life, which leaves an indelible imprint on our mind, and past memories keep flashing into our mind when we look at the photograph years later. जो टाइटल है अ फोटोग्राफ, अगर हम देखें तो ये सिंबलिक है ऐसे ही प्लेजरेबल मोमेंट का हमारे जीवन के ऐसे ही जो प्लेजरेबल मोमेंट है उनका सिंबॉलिक है, जो कि एक इंडेलिबल इम्प्रिंट, कभी न खत्म होने वाला इम्प्रिंट हमारे दिमाग पे छोड़ के जाता है. और जो पास्ट मेमोरीज हैं वो हमारे दिमाग में फ्लैश करती रहती हैं जब कभी भी हम फोटोग्राफ्स को देखते हैं. फोटोग्राफ्स हमारी पास्ट मेमोरीज को या हमारी जो पहले के जनरेशन के लोग हैं उनको याद करने का, उन पे रिफ्लेक्ट करने का एक माध्यम है, इज अ सोर्स फॉर दैट. वी ऑल नो इट वेरी वेल दैट चेंज इज द हार्श एंड बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ. हम अच्छी तरह जानते हैं परिवर्तन हमारे जीवन का बहुत ही हार्श और बिटर रियलिटी है. बहुत ही फेमस सेइंग है रिगार्डिंग दिस दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. टाइम और टाइड किसी का वेट नहीं करते. डेथ कम्स एज द ग्रेटेस्ट लेबलर, और सबसे ग्रेट लेबलर के रूप में डेथ हम सब के लिए एक अनअवॉइडेबल फैक्ट के रूप में सामने आती है. इट इज द इनएविटेबल एंड ऑफ ऑल. ये हम सब का इनएविटेबल एंड है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते. वहीं पे अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग को, अगर हम नेचर के ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करें, नेचर के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लाइक द सी, द रिवर, द ब्रुक्स एंड द ओशियंस, दे आर पेरेनियल एंड एवरलास्टिंग, बट ह्यूमन लाइफ इज टू शॉर्ट इन कंपेरिजन. अगर हम नेचर के ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखें तो ऐसे सी है, रिवर है, ब्रुक्स हैं, ओशियंस हैं, वो पेरेनियल हैं, एवरलास्टिंग हैं. उनके कंपेरिजन में ह्यूमन लाइफ बहुत ही छोटी है. When death strikes, we humans are expected to accept the loneliness and the vacuum it creates. जब डेथ स्ट्राइक करती है तो हम ह्यूमंस लाचार हो जाते हैं उस जो वैक्यूम डेथ के द्वारा क्रिएट होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल पोएम, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट पोएम. Let us try to read it. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. In these lines, the poet is looking at an old photo album which is made up of cardboard. ये फोटो एल्बम भी हो सकता है या कोई फोटोग्राफ हो सकती है जो कि वॉल पे हैंग कर रही हो, जो कि कार्डबोर्ड से बनी हुई है, उसको पोएट देख रही हैं. इन द पिक्चर देर आर 3 गर्ल्स हु आर कजिन्स एंड हु आर वॉकिंग ऑन द बीच. दे हैड गॉन फॉर पैडलिंग. वो सब के सब पैडलिंग करने के लिए गए थे वहां पे. पैडलिंग को जो है वॉकिंग है वो, ठीक है, या एक छोटी जो बोट होती है जिसको हम पैडल करते हैं उससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉकिंग से इसका सेंस बेटर रूप में हम ले सकते हैं. सो पिक्चर में हम देखते हैं कि 3 गर्ल्स जो कि कजिन्स हैं वो बीच पे वॉक कर रही हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड ईच वन ऑफ देम, आई मीन देयर आर 3 गर्ल्स, वन इज द पोएट्स मदर
एंड द अदर टू आर हर कजिन्स। वो दोनों लोगों ने मेरी माँ के हाथ को पकड़ रखा है। ओके, द गर्ल इन द मिडिल, एज आई टोल्ड यू, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। उनमें से सब ने, मैंने दोनों ने जो है मेरी माँ के हाथ को पकड़ रखा है। एट सी द बिग गर्ल some 12 years or so. Why? Because my mother is younger than the other two. The girl in the middle is the tallest and oldest. The other two girls on each side are younger than her. जो बीच में लड़की है वो सबसे लंबी है और सबसे बड़ी है, जबकि दो अन्य जो लड़कियां हैं वो उससे छोटी है। ओके, द गर्ल इन द मिडिल इज द पोएट्स मदर। और जो बीच में लड़की है जो सबसे बड़ी है, सबसे टाल है, सबसे उम्र में भी बड़ी है, वो पोएट की माँ है। सम 12 years or so. She was around 12 years old when the picture was taken. जब पिक्चर ली गई थी उस समय वो लगभग 12 साल के आसपास की थी। Some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. In the above lines, the poet describes how the photograph was taken. इस स्टंजा में इस पार्ट में बताया गया कि वो फोटोग्राफ किस प्रकार से लिया गया था। Her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose. जो पोएट की मदर हैं उनके अंकल ने उस फोटोग्राफ को क्लिक किया था और उनको कहा था कि वो एकदम स्टॉप हो जाए और पोज दें। ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल्ड एट द कैमरा। उन सब ने जो है अपने हेयर को ओपन छोड़ दिया था। ओके, उन सब के बाल गीले थे और उन सब ने अपने बालों को ओपन छोड़ रखा था। द पोएट्स अटेंशन इज ड्रॉन टूवर्ड्स द मदर्स फेस। यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि जो पोएट का अटेंशन है वो ड्रॉ किया जाता है अपनी माँ के फेस पे। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, अ स्वीट फेस। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। अपनी माँ के फेस पे अटेंशन ड्रॉ करते हुए पोएट ने कहा कि हर मदर्स फेस विच इज डिस्क्राइब्ड एज स्वीट फेस, जो कि एक स्वीट फेस के रूप में डिस्क्राइब किया गया। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बोर्न। ये जो फोटोग्राफ है वो पोएट के पैदा होने के काफी पहले ली गई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। द पोएट calls their feet terribly transient as they are so young by then and now they had grown older. पोएट ने यहाँ पर अपनी माँ के और उनके कजिन्स के जो फीट है, पैर हैं, उनको टेरेबल ट्रांजिएंट फीट बोला, क्योंकि सी तो जैसे था वैसे ही बना हुआ है, जबकि आज वो बड़े हो गए, या ये कह सकते हैं कि वो उसकी माँ अब नहीं जिंदा है। On the other hand, the sea which touched their feet had changeless. वहीं पे जो सी है जो कि मेरी माँ के पैरों को छुआ उस समय, उसमें बहुत कम चेंज आए। The sea where mother and her cousins enjoyed their holiday has got changed much ever since. Has not changed much ever since. वो समुद्र जिसने कि उस दिन हॉलिडे के दौरान मेरी माँ के पैरों को छुआ, उसमें उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। Whereas the mother and her cousins have changed. जबकि जो पोएट की माँ है और उनकी कजिन्स, उनमें चेंज आ गया है। They have grown physically. वो फिजिकली आज बड़ी हो गई हैं। The unchanged sea contrasts with the changes that human life undergoes
विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पर आप देखेंगे कि पोएट ने बड़े अच्छे ढंग से सी को जो है कंट्रास्ट करने का प्रयास किया है। एक जो सी है जो कि अनचेंज्ड है, वहीं पे ह्यूमन लाइफ में समय के साथ कितने ढेर सारे परिवर्तन आ जाते हैं उसको दिखाने का प्रयास किया है। एज कंपेयर टू नेचर ह्यूमन लाइफ इज ओफली शॉर्ट। अगर हम नेचर के कंपेयर में जो है ह्यूमन लाइफ को कंपेयर करें तो ह्यूमन लाइफ ओफली शॉर्ट है। जस्ट लाइक द फुटप्रिंट्स ऑन अ वेट बीच आर वॉश्ड अवे बाय सी वेव्स इन नो टाइम, ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड टू। जिस प्रकार से हम अगर समुद्र के किनारे जाते हैं और वहाँ पे पैडल करते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, जो हमारे पैर हैं, हमारे पैरों के निशान बनते हैं और फिर लहर आती है और उन पैरों के निशान को ख़त्म कर देती है। उसी प्रकार से टाइम है जो कि टाइम का टाइड एक बार आता है और हमारी लाइफ को ख़त्म कर देता है। द टाइड ऑफ टाइम वॉशेस अवे इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। समय का जो टाइड है वो हमारे अस्तित्व को ही ख़त्म कर देता है। The girls' footprints were washed away into nothingness soon after they were formed. जो गर्ल वहां पे थी उनके फुटप्रिंट्स खत्म कर दिए गए the waves of the sea के द्वारा। The girls themselves died with the passage of time. वो जो लड़कियां हैं वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, समय के साथ वो मृत्यु के का शिकार हो गई है। ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ट्रेजिक। जो ह्यूमन लाइफ का ट्रांजिएंस है वो बहुत ही ट्रेजिक ट्रांजिएंस है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. She, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. After 20 or 30 years later, she would laugh at the photograph. पोएट की मदर जब 20 या 30 साल बाद अपनी उस फोटोग्राफ को देखी तो उनको अपनी फोटोग्राफ को देख के हंसी आ गई। जिस तरीके से बेटी एंड डॉली, अब यहाँ पे क्लियर होता है कि उनकी जो कजिन्स हैं उनकी नाम है बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली ने उसको किस प्रकार से ड्रेस कराया था। हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस ऑल थ्री ऑफ देम फॉर द बीच। They would have planned to take a photograph beforehand. इसीलिए एक्चुअली उन लोगों का पहले से प्लान रहा होगा कि उन लोगों को फोटोग्राफ वहाँ पर लेना है, इसीलिए वो लोग जो है अलग तरीके से ड्रेसअप होकर के वहाँ पे सी हॉलीडे पे गई थी। The sea holiday was her past. Mine is her laughter. These lines are very important. Please pay attention to it. Poet recalls the sea holiday was her mother's favorite moment for the past. Poet recall करती हैं कि जो सी हॉलीडे था वो उसकी माँ का फेवरेट मोमेंट था पास्ट के लिए, फ्रॉम द पास्ट से। जबकि पोएट का फेवरेट मोमेंट क्या है? While the poet's favorite moment from the past was her mother's laughter. जबकि पोएट का जो फेवरेट मोमेंट है पास्ट से वो है उसकी माँ की हंसी। The incident of the sea holiday and the laughter of the mother, which were revived by the look at the snapshot, are now both the things of the past. दोनों, वो सी हॉलीडे का इंसिडेंट और पोएट की मदर की हंसी, दोनों जो कि उस फोटोग्राफ को देख करके रिवाइव हुई, क्योंकि दोनों आज पास्ट की चीजें हो गई हैं। आज दोनों सरवाइव नहीं कर रहे हैं। Whenever the mother looked at the snapshot, she was lost in her past. जब कभी भी माँ पोएट की मदर उस स्नैपशॉट को देखती थी वो पास्ट में, अपने पास्ट में खो जाया करती थी। एंड रिलीव्ड द मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड डेज, और अपनी चाइल्डहुड डेज की मेमोरीज को फिर से रिलीव करती थी, उसको फिर से जीती थी। For the narrator, a look at the snapshot would remind her how her mother laughed at the sight. और नरेटर के लिए जब वो स्नैपशॉट को देखती है तो वो रिमाइंड करती है कि किस प्रकार से उसकी माँ उस
पिक को देख करके, उस स्नैपशॉट को देख करके हंसी होंगी. ओके, सो दैट इज व्हाट इट बीन टोल्ड ओवर हियर. बोथ राय विद द labored ease of loss. She misses the joyful moments she enjoyed with her mother. I mean, जो पोएट है वो मिस करती हैं उस जॉयफुल मोमेंट्स को जो कि उन्होंने अपनी माँ के साथ एंजॉय किया था. Both the women would think about those past moments which they cannot live again. दोनों वुमेन, I mean पोएट और पोएट की मदर, दो की दोनों महिलाएं आज क्या करती हैं? आज अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करती हैं. वो मेमोरीज जिसको वो दोबारा नहीं जी सकती. They tried their best to adjust to what they lost. समय की वर्किंग के दौरान उन दोनों ने बहुत कुछ लॉस किया और वो दोनों अपने अपने लॉस को एडजस्ट करने का प्रयास करती हैं. आर यू क्लियर टू मी? बोथ राय, दोनों दुखी हैं, दोनों सैड हैं, दोनों को लॉस हुआ है. जैसा मैंने बताया कि जो चेंज है ना वो हमारी लाइफ की हार्श और बिटर रियलिटी है. नन कैन होल्ड और कैप्चर टाइम. कोई भी टाइम को होल्ड या कैप्चर नहीं कर सकता. विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग गेट्स डिस्टॉर्टेड. समय के साथ सब कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है. एंड मैन इज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट दिस लॉस विथ ईज. और इंसान जो होता है ना, इंसान कंपेल्ड हो जाता है अपने हर एक लॉस को ईज वे में एक्सेप्ट करने की. हाउएवर हॉर्स आर पेनफुल इट मे बी फॉर हिम टू सी. वो जो लॉस हुआ है वो कितना भी हॉर्स हो, कितना ही पेनफुल हो, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है. और हम सभी जानते हैं कि जो टाइम है ना, टाइम हमें अगर वाउंड्स देता है तो उन वाउंड्स को हील करने का माध्यम भी देता है. धीमे धीमे जो पास्ट का लॉस है उसको हम किसी न किसी तरीके से भूल जाते हैं, टाइम में आगे बढ़ जाते हैं. Now let us see the last stanza. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. In the above lines, the poet says that her mother died 12 years ago. Because लगभग 12 साल पहले आज उसकी माँ जो है मर चुकी हैं 12 साल पहले. The same age her mother was in the photograph. ये एज वही है. I mean 12 साल की ही थी वो जब वो वहाँ पे फोटोग्राफ में जिसमें उनकी स्नैपशॉट ली गई थी, उस समय उनकी एज 12 साल की थी. आज उनको मरे हुए 12 साल हुए हैं. That is being told over here. She has been dead nearly as many years as that girl lived. Okay, जितने साल की उस समय थी जब वो फोटोग्राफ ली गई थी, आज उनको मरे हुए उतने साल भी हो गए हैं. The same age. Okay, whenever the poet thinks of her mother's death, she cannot explain. Okay, she cannot explain what effect she has of her mother's death. जब कभी भी वो जो कभी भी पोएट सोचती हैं अपनी माँ की मृत्यु के बारे में, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उनकी माँ की डेथ का उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट हुआ है. The magnitude of the poet's sense of loss at her mother's death is too big for her to express it in words. वो उनकी अपनी उनकी माँ के डेथ का पोएट की लाइफ पे क्या जो इफेक्ट हुआ है उसको वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. वही वो घटना हुई, घटना कौन सी? उसकी माँ की मृत्यु की. उस घटना के बारे में वो अपने वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं. It has left her stunned in disbelief. उस घटना ने उनको डिसबिलीफ में छोड़ दिया, स्टन वे में. She is left to be constantly
Its silences. So she is left to be constantly haunted by the vacuum her mother's death has created. अब जो वैक्यूम बना है उनकी मां की मृत्यु के बाद, उसके साथ ही उनको अपना जीवन आगे बढ़ाना है. डेथ हैज साइलेंस्ड हर मदर. उनकी मां की मृत्यु ने उनकी मां को साइलेंस कर दिया. विच हैज लेफ्ट हर स्पीचलेस. अब वो कुछ बोल नहीं सकती, उनके पास वर्ड्स नहीं है. जो दुख उनको हुआ है उनकी मां की मृत्यु का, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास वर्ड्स नहीं है. द इटर्नल साइलेंस ऑफ डेथ सीम्स टू साइलेंस एवरीथिंग. जो मृत्यु का इटर्नल साइलेंस है, ऐसा लगता है मानो वो सब कुछ शांत कर देता है. साइलेंस एवरीथिंग एल्स फॉर ओनली द साइलेंस नाउ प्रिवेल्स ओवर द थॉट्स ऑफ द नरेटर. क्योंकि अभी नरेटर के जो है थॉट्स में केवल साइलेंस ही है. साइलेंस ही बेस्ट वे है जिस प्रकार से वो अपनी माँ के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको एक्सप्रेस कर सकती है. दिस साइलेंस आल्सो एक्सप्रेसेस ह्यूमन हेल्पलेस इन मैटर्स लाइक डेथ. ये जो साइलेंस है ना, वही वो हमारी हेल्पनेस को, ह्यूमन हेल्पनेस को एक्सप्रेस करता है. मृत्यु जैसे मामलों में हमारा कोई भी कुछ भी प्रयास कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते. वी डोंट हैव मच टू डील or to speak about that. So we have cleared the explanation. If we talk about literary devices, the poet has used alliteration. As we all know that alliteration is the repetition of consonant sound at the beginning of two or more conjugative words. So if we take the instances of alliteration from the poem, we can see stood still, through dear, my mother's, terribly transient, silences. In these all you can see alliteration, beautiful alliteration. Poet also has used oxymoron. We know what is oxymoron. Oxymoron is a term which contracts itself like levered is of loss. Okay, and the poet has also employed transferred epithet. Transferred epithet is a phrase expressing a quality of a poem or something. So if we see terribly transient is very beautiful example of transferred epithet. So students, in this way I have tried to explain the poem. Thank you. Have a nice day.